So we'll wait. Okay, fine. I think you can see. Let me present. My screen is visible. Just say yes or no in chat box. Okay. Now, before we start, let me give one instruction, that is clear instruction. In lab, you have to bring your laptop, or if you are working with laptop or desktop, then and then I will allow you. Now in labs, if you are not sharing your screen or anything else, like whatever reason, light is not there, laptop is not charged, or any reason, I will not allow you. Okay, any reason I will not allow, I will not mark present, in short. Okay, so in lab session, you have to work with laptop or desktop. Okay, without it, I will not allow, whatever reason you present. Okay, that is for sure. Fine. So I think Java static keyword we have seen last lecture. I also explained you the static keyword. And I think for static keyword, I have explained this to you. Okay, I think I think we have done the counter program, right? Counter program, and let me search. This document has become very wide. Counter. Okay, yeah, here. Fine, we were seeing string, right? We also seen string. Yes, I remember now. These methods we have seen. Even again, we have seen string buffer and string JavaScript string, and all these things we have seen. String buffer and string builder also we have seen. There is a difference. I think array start कर रहे थे. हाँ, array. इसके बाद array था, पर array तो हमने कर दिया है. We have completed array, so we'll pass it and we'll see the next topic. कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैं स्लोली करता हूँ. मैं भी देख लेता हूँ कुछ मिस ना हो जाए. एरे हमने देख लिया है. अगर ऐसा हो तो पिछले बार लेक्चर्स देख लेना, हमने एक्सप्लेन किया था. ओके, ये भी हो गया, प्रेसिडेंस भी हो गया. देख लेते हैं नेक्स्ट कहाँ तक हुआ है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो गया है. हाँ, ये डॉक्यूमेंट सब लिखा है. हाँ भाई, ये रैंडम क्लास शायद नहीं हुआ है. तो भाई रैंडम क्लास क्या है? Am I right? Random class is not yet done. Fine. So what is random class? ठीक है, जब जैसे ही प्रैक्टिकल जरूरत पड़ेगी, I will be showing you the practicals. Otherwise, it's fine. By random class is used to generate pseudo-random numbers in Java. An instance of this class is threadsafe. The instance of this class is, however, cryptographically insecure. This class provides various method calls to generate different random data types such as float, double, integer. ठीक है. ठीक है, रैंडम ये कंस्ट्रक्टर, एक्चुअली इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर है क्लास के अंदर. कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है? जैसे कि न्यू कीवर्ड आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. सो रैंडम ऐसे क्रिएट अ न्यू रैंडम नंबर जनरेटर. और रैंडम लॉन्ग सीड क्या होगा कि ये सीड हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो क्रिएट्स न्यू रैंडम नंबर जनरेटर यूजिंग अ सिंगल लॉन्ग सीड. सीड की हेल्प से वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. जहाँ रैंडम क्लास इज यूज्ड टू जनरेट अ स्ट्रीम ऑफ pseudo random numbers. The algorithm implemented by random class use a protected utility method that can supply up to 32 pseudo randomly generated. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल डायरेक्टली. ये सब मेथड है. ठीक है, अभी देखो. हाँ भाई, जो भी प्रोग्राम लेट मी रिमूव. Okay, now you see in this program, ये प्रोग्राम में पहले रैंडम से स्टार्ट किया है. तो सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट कर, उसका क्लास अंदर ही बना हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो रैंडम क्लास लिखा और कुछ भी उसका वेरिएबल टाइप लिख लो. जैसे कि उसने स्मॉल में लिखा है तो हम भी यही लिखते हैं, इज इक्वल टू न्यू रैंडम.
ठीक है, देखो अभी सबसे पहले एक इंपोर्ट भी करवाया मैंने, ये इंपोर्ट देखो, क्योंकि ये क्लास बैकएंड में रेडी है, हमें बस एक इंपोर्ट करना है, रैंडम उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से उसकी जो भी मेथड है हम कॉल करेंगे। देखिए जैसे कि रैंडम डॉट करूंगा तो जो भी उसका मेथड्स है वो यहाँ पे कॉल होगा। ये तो भाई नेक्स्ट क्या है, मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ। ठीक है, अभी देखो एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटल है ना, उसमें लॉन्ग वैल्यू लिखा है रैंडम डॉट लॉन्ग्स, देखो लॉन्ग्स करके है, तो क्या है, रिटर्न्स एन अनलिमिटेड स्ट्रीम ऑफ स्यूडो रैंडम लॉन्ग वैल्यूज। बाकी सब मैं कर देता हूँ अभी कमेंट। ये लॉन्ग वैल्यू वाले देखते हैं, उसमें इंटीजर भी अप्लाई करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है ना। रैंडम वाला आगे जाके भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा, प्रैक्टिकल्स में भी है रैंडम वाले प्रैक्टिकल्स, तो वो यहाँ पे भी काम आएगा, वो देख लेते हैं। अच्छा ये तो बस, अच्छा वैल्यूज ही नहीं है, अच्छा अच्छा ये, अच्छा ये जो है, ये जो लॉन्ग वैल्यूज है, ये सूडो रैंडम वैल्यूज है, मतलब कि देखो वैल्यूज हमें अभी काम नहीं आ रही है, काम नहीं आ रही है। ठीक है, उसके आगे वाला कोड ही करते हैं। तो देखो एक बुलियन ले लिया वैल्यू, रैंडम डॉट नेक्स्ट बुलियन, और उसकी वैल्यू भी हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, देखो रैंडम बुलियन वैल्यूज में क्या आएगा, बुलियन वैल्यूज में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स ही होता है, तो रैंडमली ट्रू और फॉल्स हमें देगा, रैंडमली ट्रू और फॉल्स देगा। ठीक है, एक बार रन किया ट्रू आया, ठीक है, दूसरी बार मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे फॉल्स है, ऐसा फिक्स नहीं है, रैंडम लेंगे तो फिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये रैंडम नेक्स्ट बाइट है, पर हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं ये बाइट की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, ये प्रोग्राम में, अच्छा प्रोग्राम में लिखा है पर हमने प्रिंट नहीं लिया। ठीक है, तो ले लेते हैं ये। ठीक है, देखो अभी रैंडम बाइट्स है, रैंडम बाइट्स में क्या हुआ कि हमने एक बाइट नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके साइज हमें 10 है एरे, तो 10 में ले लिया। फिर नेक्स्ट बाइट है, तो उसमें क्या है कि रैंडम डॉट नेक्स्ट बाइट, मतलब जो भी होगा वो हम बाइट्स हम के एरे में डाल रहे हैं यहाँ पे, फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट ऐसे लिया है जैसे कि हमें पता चलेगी जैसे ऐसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इतना स्ट्रिंग पहले प्रिंट किया, फिर आई टू 10, जैसे कि ये बाइट से है, उसकी साइज कितनी है, 10, 10 तक हमने लूप ऐसे दौड़ाया, और लूप के अंदर हम बाइट्स नाम में जो भी रैंडम वैल्यू से डाला है ना, वो हम प्रिंट करवा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, अभी देखो 64 माइनस 47 ये बस आगे के दो तीन याद रखते हैं, और फिर एक बार रन करते हैं तो अलग ही वैल्यू आएगी। 64 माइनस 47 42 है, देखो और तीन वैल्यू अलग हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ रहा है यहाँ पे, आई लेस इन बाइट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हम क्या करें कि बाइट्स है, यहाँ पे एरे के अंदर हम जो भी है हम वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस ये लास्ट वाला प्रिंट वाला लूप है, वो तो एक बस यहाँ पे एंड ही होगा। ठीक है, एनीवे सो भाई रैंडम वाला जो है रैंडमली वैल्यू जनरेट करेगा। यस यस अभिषेक, ये जो तुमने लिखा है import java डॉट util डॉट ऑल मीन्स सभी पैकेज और सभी जो क्लास है उसको इंपोर्ट कर देगा। देखो यहाँ पे देखो यूटिल में स्कैनर क्लास भी है, स्कैनर क्लास की जरूरत है तो हम स्कैनर लिख लेंगे, पर अगर ऑल लिखते हैं तो क्या होगा, जैसे कि वो कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक इतना ज्यादा नहीं होगा, पर क्या होगा कि अगर हम जार फाइल बना, देखो जार फाइल कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक, अगर यहाँ पे जार फाइल नहीं है, राइट, हाँ देखो क्लीन एंड बिल्ड करता हूँ, तो बिल्ड मतलब क्या करता हूँ कि एक जार फाइल बनेगी,
नहीं, एक यहाँ पे एरर है, सिर्फ जार फाइल नहीं बनेगी, ये दो पैकेज में एरर है। ठीक है, मैं अभी समझा, ऐसे ही मैं समझाता हूँ। देखो, जार फाइल बनेगी तो जार फाइल में क्या होगा, ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी मेंशन है वो सब लाइब्रेरी जार फाइल के अंदर डालेगा। जार फाइल मतलब क्या कि एक ईएक्सई फाइल जैसा है। ईएक्सई फाइल स्टैंड अलोन होता है, जो डबल क्लिक करते हैं तो ईएक्सई फाइल मतलब फाइल लॉन्च हो जाती है। ठीक है, मतलब वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है, जैसे ही जार फाइल वैसे ही है। तो जार फाइल में क्या होता है कि हम डबल क्लिक करते हैं तो जार फाइल प्रोग्राम लॉन्च होता है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, वो अदर क्लास पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए हम जो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं इंपोर्ट, वो क्लास जार फाइल के अंदर डाल देगा। तो अगर हम स्कैनर करते हैं, स्कैनर क्लास ही डालेगा। अगर ऑल करेंगे तो सभी क्लास, यूटिल पैकेज में जितने भी क्लास है सभी क्लास डालेगा। तो साइज बढ़ जाएगी थोड़ी, है ना, साइज बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल के कंप्यूटर्स बहुत फास्ट है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कि ऑल नहीं, जो पर्टिकुलर है वही लिखना है। जैसे कि रैंडम है तो हमने रैंडम ही लिखा है, यूटिल डॉट ऑल नहीं लिखा है। ठीक है, समझ में आया अभिषेक? ठीक है। हाँ, तो भाई क्या हो कि ये वन ऑफ द यूज इज दैट इट enables to reproduce the result of your program in future। अच्छा, ये एक सीड वाला है। ये एक एग्जांपल है ना, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं एक एग्जांपल ऑनलाइन सर्च करके ले लेता हूँ। रैंडम वैल्यू जनरेशन यूजिंग सीड वैल्यू इन जावा। ठीक है, उसका एक एडवांटेज है, तो बाद में बताता हूँ। अभी सीड वैल्यू वाला, ठीक है, ये ले लेता हूँ। देखो, ये प्रोग्राम है, रैंडम नाम का फंक्शन लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया आर, फिर रैंडम और नेक्स्ट इंटीजर लिया, तो एक इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा रैंडमली। ठीक है, वो स्यूडो रैंडम इंटीजर वैल्यू होगी। फिर हम सीड में वैल्यू लेते हैं 24, और 24 को सेट करते हैं, और 24 से हम वो इंटीजर वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी देखो एडवांटेज क्या है, पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, ये है, ये -1346 है, और ये देखो 115240 है। अभी देखो, मैं और एक बार रन करता हूँ। ठीक है, अभी देखो ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो गई, नीचे एज इट इज रहती है, एज इट इज रहती है। देखो अभी और क्या है इसमें, कि कई बार क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है रैंडम वैल्यू से, या फिर कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो इसमें रैंडम वैल्यू से हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंट दूसरी बार ऐसा ही आंसर दे, तो इसकी क्या गारंटी, क्योंकि रैंडम वैल्यू तो क्या रैंडम वैल्यू ही देगी, तो हमें हर बार रिजल्ट तो ठीक नहीं मतलब सही नहीं निकलेगा। तो क्या है कि ये सीड वाला है, हम 24 सीड हम डाल रहे हैं, तो 24 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 24 वो एक वैल्यू जनरेट करेगा, तो वो हर बार सेम ही रहेगी। हम सीट की वैल्यू चेंज करवा रहे हैं, हाँ, सीट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, 24 लिया, आगे जगह 14 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग ये जो है, ये वैल्यू जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे, वो हर बार चेंज होता रहेगा। मतलब सीड में 24 है तो एक ही वैल्यू जनरेट होगा, देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू जनरेट होगा। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया अभी मैंने, मुझे रिप्रोड्यूस मतलब किसी और को दिखाना है, तो मैं सीड वैल्यू ले लूंगा 24 के हिसाब से जो भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट हुई वो सेम ही रहेगी। यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ या बाहर करूँ या कोई अलग सिटी में जाके अलग कंप्यूटर में जाके करूँ, ये वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, हाँ, पर सीड वैल्यू नहीं लेता हूँ तो कोई और ही वैल्यू हर बार आती रहेगी। ठीक है, तो सीड का ये एक बेनिफिट है। सीड का बेनिफिट पे समझ में आ रहा है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस सीड वैल्यू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
यस श्योर। देखो यहाँ पे पहले मार्क करो क्या है, रैंडम इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है, ये -6039 है, और यहाँ पे एक वैल्यू है -1152। ये 4 फिगर या 5-6 फिगर ही याद रखो, ठीक है। तो मैं फिर से ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ऊपर वाले फिगर चेंज हो गए पर नीचे वाले फिगर जो है एज इट इज रह रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ऊपर वाले में क्या प्रोग्राम है, रैंडम ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो आर डॉट नेक्स्ट इंटीजर से रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई, रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई, ठीक है। और अभी देखो सेटिंग सीड एस इज इक्वल टू 24 है। मतलब सीड वैल्यू क्या है, सीड मतलब क्या कि आप वो आपने नाम सुना होगा, खेत में वो बीज होते हैं ना उसको सीड बोलते हैं। वो हम सीड डालते हैं फिर उससे प्लांट ग्रो होता है, ऐसे इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो अभी क्या है कि सीड वैल्यू हम 24 दे दिया, अकॉर्डिंग टू 24 ये 24 को रख के कुछ कैलकुलेशन है। तो वो कैलकुलेशन पता नहीं, वो देखना पड़ेगा अंदर जाके। पर 24 को ध्यान में रखते हुए वो ऐसी वैल्यू जनरेट करेगा जो हर बार सेम ही रहेगी। जैसे कि ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, तो हर बार मुझे यही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर मैं सीड वैल्यू यहाँ पे चेंज करूंगा तो मुझे अलग वैल्यू हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज क्या है, यूज क्या है, देखो सीड वैल्यू का एडवांटेज ये है कि 24 के लेके मैंने जो भी वैल्यू यहाँ पे जनरेट की वो आगे जाके भी मुझे ऐसे ही वैल्यू चाहिए, सेम वैल्यू ही चाहिए। तो जाके मेरा एक्सपेरिमेंट है वो रिप्रोड्यूस कर सकूंगा। देखो एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि रिजल्ट जितना रिप्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा रहता है ना। जितना रिप्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो फिर आ, ये अच्छा वाला है, मतलब कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट दूसरी बार सबको दिखा पाऊंगा कि देखो यही रिजल्ट आ रहा है जो सही है। मतलब मैं रैंडम नंबर वाला एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें हर बार अगर रैंडम ये सिंपली मैं करता हूँ तो हर बार अलग वैल्यू आएगी, हर बार एक्सपेरिमेंट अलग रहेगा, हर बार कुछ अलग अलग आंसर आएगा। पर मैं सीड वैल्यू ले लेता हूँ तो हर बार मुझे एक ही वैल्यू जनरेट करके देगा, इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में, लॉन्ग में, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? सीड वैल्यू वाला। इफ आई टेक 11 देन हाँ 11 के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। 11 ले लिया, पर अब 11 के हिसाब से जो भी वैल्यू आ रहा है -115817 ऐसा, देखो 6 वैल्यू याद रख लो लास्ट में। अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से ये रन करता हूँ, देखो ऊपर पॉजिटिव कुछ अलग वैल्यू आ गई, पर ये नीचे वाली जो सीड वैल्यू वाला रैंडम जनरेटर है वो एक ही वैल्यू देगा 11 के हिसाब से, ठीक है। देखो 11-57, देखो ऊपर देखो पॉजिटिव में से नेगेटिव हो गया, कुछ रैंडमली वैल्यू उसने दे दिया इंटीजर में, और यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया सीड वाला रैंडम। रैंडम वाला फंक्शन अभी खत्म। रैंडम में दो है, एक तो सादा वाला रैंडम जो रैंडमली कुछ भी वैल्यू जनरेट कर देता है इंटीजर में, बाइट्स में, शॉर्ट में। और दूसरा वाला है ये सीड वाला जो इम्पोर्टेंट है, वो मतलब समझने में इम्पोर्टेंट है। समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ देखा था, फिर भी अभी आगे देख लेते हैं। ये तो मैम ने देखा था कि पुलिस स्टेशन में जाओ तो इंस्टेंस अलग अलग निकलते हैं। कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर देखा था। हैव वी कवर्ड कंस्ट्रक्टर? यस और नो? कंस्ट्रक्टर देख लिया था। हाँ भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर रिपीटेशन चाहिए तब भी बोल देना, क्योंकि भाई आपका एग्जाम जीटीयू वाले लेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो क्लियर नहीं रहेगा। हाँ फिर भी पुराने वीडियो तो है ही, बहुत सारे मटेरियल भी मैं आपको दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ठीक है, कंस्ट्रक्टर आई थिंक कवर हो गया। शॉर्ट में समझाई दो, कैन वी यूज रैंडम इन अनदर क्लासेस। हाँ, रैंडम फंक्शन है, बहुत सारे में मतलब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक क्लास में यूज किया, देखो बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर फटाफट समझा देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल म्यूट फॉर 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सो, हाँ भाई, कंस्ट्रक्टर जो है वो भाई स्पेशल एक फीचर है, जावा का फीचर है। मतलब कंस्ट्रक्टर देखो पाइथन में भी आता है कंस्ट्रक्टर, शायद और किस में आता है, डॉट में आता है, मुझे नहीं पता, पर आता होगा शायद। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में काम आता है, ठीक है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले यूज क्या है, देखो सबसे पहले मैं यहीं से समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम लेके ये सब निकाल देता हूँ। अभी देखो ये न्यू क्लास है, एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा डायरेक्टली, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, है ना। कहाँ गया अपना अभिषेक, ये पीपीटी नहीं है, ये वर्ड फाइल है, और वर्ड फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर नहीं है तो फिर एक बार मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो देख लो, ई कंटेंट में ऑलरेडी आ गया अपलोडेड सर, है। आ गया। हाँ आ गया, सौरभ बोल रहा है आ गया, तो अभिषेक देख आ गया लेना, सर, आ ठीक है गया। ना। हाँ, अगर नहीं है तुमने नहीं दिखा 2 बार मुझे बोल देना, क्योंकि ये जो वर्ड फाइल है मैं अपडेट करता रहता हूँ, अभी भी ये अपडेट करूंगा, या तो इसमें नहीं दूसरी वर्ड फाइल में अपडेट करूंगा, ठीक है। पर मैं आपको देता रहूंगा, ये बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्स है, पीपीटी है, उसमें सबसे मिक्सचर करके बना हुआ है, ठीक है। एनीवे, हाँ भाई, ये कंस्ट्रक्टर जो है ये बहुत एक स्पेशल मेथड है। जैसे कि क्या है, ये क्लास है, तो एक मेथड में लेता वॉइड सम, वॉइड सम इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और मैं करता हूँ इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो मैंने ये एक मेथड बनाया, मेथड तो आपको पता ही है क्या है, आपने सी में पढ़ा होगा, सी प्लस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मेथड हो गई।
एरर नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी। अभी देखो कौन आंसर देगा, ये मेथड को मैं कैसे कॉल करवाऊं, कौन आंसर देगा, मेथड को मैं कैसे कॉल करवाऊं, हाउ डू आई कॉल दिस मेथड। ये मेथड को मैं कैसे कॉल करवाऊं, कौन बताएगा। हाँ भाई, ये सुनाई दे रहा है, एवरीवन कैन हियर मी। क्वेश्चन क्या है, मैं मेथड को कैसे कॉल कराऊं, हाउ डू आई कॉल दिस मेथड हियर। ठीक है, देखो ये मेन मेथड है, ये मेन क्या है एक्चुअली, ये भी एक मेथड है। हाँ, ये भी एक मेथड ही है मेन। इसमें मैं कॉल कैसे करवाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बना के सिंपल न्यू क्लास एनसी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया इज इक्वल टू न्यू न्यू क्लास। अभी मैं क्या करूंगा, एनसी डॉट करूंगा, और देखो उसकी मेथड मुझे दिख गई, मैंने कॉल करा लिया, मैं दो वैल्यू पास करता हूँ 10 20, और क्या होगा, ये मेथड कॉल आ जाएगा। देखो सम मेथड में दो वैल्यू पास करा 10 एंड 20, तो 10 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, 10 और 20 का समेशन क्या होता है 30, तो 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना समेशन। अभी देखो ये मेथड हो गई सिंपल वाली, तो हर बार मुझे ये कॉल करना पड़ेगा, ऐसा एनसी डॉट करके कॉल करना पड़ेगा। पर कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का सबसे पहला रूल है कि ये जो क्लास का नाम है उसी नाम से मेथड का नाम होगा, स्पेशल मेथड उसको बोलते हैं। तो उसको मैं करता हूं न्यू क्लास। देखो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर, कोई एरर नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, जो क्लास का नाम है वही नाम यहाँ पे आएगा। दूसरा, जैसे ही मैं न्यू कीवर्ड यहाँ पे पास करता हूं, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। वन मोर थिंग, ये मेथड कब कॉल होगी, जब मैंने उसका ऑब्जेक्ट का डॉट करके मैंने किया, तभी ये मेथड कॉल हुआ। और कंस्ट्रक्टर के कब कॉल होगा, जब न्यू कीवर्ड करके मैं जैसे ऐसा लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में जो भी है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे ए और बी मैंने पास किया है, ए और बी की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल ले लेता हूँ। ग्लोबल मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे, हाँ ये सही था, इंटीजर इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्लोबल ले लिया। अभी मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, वो ग्लोबल वैल्यू ही पास करूंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, देखो अभी स्टैटिक का अभी वो लॉजिक है वो हम बाद में समझेगा, अभी कंस्ट्रक्टर का संबंध है सबसे पहले। तो अभी क्या हो गया, देखो मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही न्यू न्यू क्लास किया, कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर में देखो क्या है, रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड 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 इंटीजर नहीं है। देखिए जैसे मैं वॉइड लिखता हूँ, तो कंस्ट्रक्टर में मतलब रिटर्न क्या करना है वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं रिटर्न में करता हूँ इंटीजर, देखो मुझे एरर आ जाएगी, मैं कुछ रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। कंस्ट्रक्टर का ये फीचर है। फ्लोट में करता हूँ, तो फ्लोट का भी एक फीचर है। ठीक है,
अभी चलो, अभी कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सम ये परफॉर्म करूं, उससे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे कि ये देखो न्यू है, तो न्यू क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस सिंपल लिखता हूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड कंस्ट्रक्टर। क्या किया, ये न्यू कीवर्ड से न्यू क्लास किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऐसा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ही जो ये मेथड है वो मेथड कॉल होगी, और मेथड में ये प्रिंट होगा टोटल, ठीक है। चलो ये सिंपल वाला रन करके देखते हैं। देखो पहले इनसाइड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद जो समेशन है वो 30 यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो मैं क्या किया, न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना एनसी, वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और इनसाइड कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा और सम मेथड कॉल हो गया। तो सम मेथड कॉल हुई, ए और बी की वैल्यू मैंने पास कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे जो सी में आंसर आया वो सी में मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अभी देखो एडवांटेज क्या है कि कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है या कुछ भी वैल्यू मुझे जैसे कि कंस्ट्रक्टर में से ही कुछ मुझे कॉल भी करना है, तो ये सब कंस्ट्रक्टर में होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी मैं सम मेथड डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सम मेथड यहाँ पे भी कॉल हो गया। देखो अभी कंस्ट्रक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कंस्ट्रक्टर इनसाइड कंस्ट्रक्टर हो तो प्रिंट होगा ही होगा। बाद में सम मेथड भी कॉल करवा ली, उसकी वैल्यू भी मैंने पास कर दी, और उसकी वैल्यू का भी मुझे टोटल मिलेगा। यहाँ पे 20 कर देता हूँ, सेव, राइट क्लिक, रन। देखो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर सबसे पहले सम मेथड, उसके बाद सम मेथड कॉल होगी, 20 क्या होगा 40, और उसके बाद सम ए कॉमा बी का सम जो 30 है वो मुझे मिला, ठीक है। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टर वाला? हाँ भाई मैंने ये देखा नहीं है। कैन यू से कंस्ट्रक्टर सिमिलर टू ओवरराइडिंग? नहीं नहीं नहीं, ओवरराइडिंग कंसेप्ट अलग है अभिषेक। कंस्ट्रक्टर और ओवरराइडिंग दोनों कंसेप्ट अलग अलग, बहुत कुछ मिक्स कर रहे हो तुम। ओवरराइडिंग वाला कंसेप्ट इंटरफेस आएगा ना तब मैं समझाऊंगा, ओवरराइडिंग अभी कुछ नहीं है। हाँ ओवरलोडिंग कीवर्ड आएगा, ओवरलोडिंग कीवर्ड आएगा, ठीक है। हाँ तो ओवरराइडिंग अभी मत समझो ना, अभी बस कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया तब तक रखो, ठीक है। ओवरराइडिंग मत समझो, अभी इंटरफेस भी एक दो लेक्चर के बाद इंटरफेस आएगा तभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, ओवरराइडिंग क्या है। अभिषेक ये कंस्ट्रक्टर समझ में आया, पहले ये बताओ, यस और नो? तभी कंस्ट्रक्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये कंस्ट्रक्टर में तो कुछ नहीं था, इसको कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप है। जैसे कि ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड मतलब क्या कि मैंने बनाया है, मैंने नाम लिखा है ना, देखो मैंने ही टाइप किया। अभी देखो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर भी है, जैसे कि मैं आर्ग्यूमेंट लेता हूं, मैंने आर्ग्यूमेंट लिया 1020, मैं कंस्ट्रक्टर में लिख लेता हूं। देखो कंस्ट्रक्टर मुझे अभी एरर क्यों दिखा रहा है मैं समझाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इंटीजर सी ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे वेरिएबल चाहिए होगा, इंटीजर ए, इंटीजर बी, वी, चलो ठीक है, ए प्लस वी, और मैं सी को प्रिंट कर लेता हूँ, सी। देखो ये न्यू क्लास जो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, देखो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, नाम तो सेम है, न्यू क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, जो क्लास का नाम होगा वहीं से कंस्ट्रक्टर बनेगा, ये याद रखना है, वरना ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये मेथड है। देखो सम है तो नाम पूरा अलग है, तो ये तो मेथड है। भाई न्यू क्लास है तो देखो ये कौन कब कॉल होगा, जैसे कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू क्लास nc1,
इज इक्वल टू न्यू क्लास। फिर देखो मैं दो वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ, जैसे कि 50, 50। देखो ये क्या किया मैंने, ये एक नया ऑब्जेक्ट बना NC1 से क्या किया, ये क्लास के जो आर्ग्यूमेंट, उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास की। मतलब क्या, इसका मतलब कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करेगा। देखो उसके पहले ये है आर्ग्यूमेंट, ये कंस्ट्रक्टर कॉल न्यू क्लास 50, 50, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 50 और 50, तो 50 प्लस 50 क्या होगा 100, और 100 ये प्रिंट होगा। देखो ये जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भले ही कमेंट कर दिया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोई अभी जरूरत नहीं है। और अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 50, 50 मैंने वैल्यू पास किया, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आर्गुमेंट वाला। तो मुझे क्या आंसर आना चाहिए, 50 प्लस 50 100। देखो 100 प्रिंट हो गया। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, वंस अगेन क्या हुआ, एक ही कंस्ट्रक्टर सेम नेम पर आर्ग्यूमेंट, एक में आर्ग्यूमेंट नहीं है एक में आर्ग्यूमेंट है, तो फिर सेम नेम वाला क्या हुआ, लॉन्च हुआ। हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा था अकॉर्डिंग टू दैट, या आर्ग्यूमेंट लिखा था 50, 50 अकॉर्डिंग टू दैट, ये लॉन्च हुआ, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ में आ रहा है भाई एवरीवन? ठीक है, दो कंस्ट्रक्टर एक साथ भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे कि मैं पहले ये कॉल कर रहा था, इस एक में क्या है, इनसाइड कंस्ट्रक्टर है, ये सम मेथड कॉल हो रहा है, दूसरे में सम का लॉजिक के अंदर डाल दिया है। तो अभी क्या होगा, वन बाय वन आउटपुट क्या निकल रहा है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कॉल करवा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट में 2020 क्या हो रहा है, ये पहले प्रिंट करेगा, फिर 2020 का समेशन होगा, तो क्या आएगा 40 आंसर आएगा। फिर ये कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। अभी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा NC1 जो 50, 50 है, तो 50 यहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा, तो 100, तो 100 का यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, 100 प्रिंट होगा, तो 100 आंसर आएगा। फिर जाके मैं सम मेथड कॉल करवा, तो सम मेथड में जो भी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू क्या ऊपर डिफाइन है 10 और 20, तो 10 और 20 का 30। ठीक है, तो ऐसा एग्जीक्यूशन होगा लाइन बाय लाइन। हमें एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग यहाँ से करना है, कोई भी प्रोग्राम दे दो, ले लो, एग्जीक्यूशन मेन मेथड है उसमें से स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले इंस्टार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद ये, फिर देखो 100 जो ये कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो भी है 100 वो हुआ, और फिर ये सम मेथड। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? ठीक है, ये हुआ गया कंस्ट्रक्टर। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ यस, तो भाई ये अभी थियोरी पार्ट देख लेते हैं फटाफट, है ना। अभी शायद 2-3 लेक्चर ऐसे रिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल मेथड है, इनिशियलाइज, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में काम आता है। ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा,
तो इनिशियल वैल्यू सेट करने में काम लगता है, जैसे कि ये है एग्जांपल। अभी डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो मेन क्लास है, एक वैल्यू है। अभी देखो मेन ये जो नाम है क्लास का, उसी से हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसकी वैल्यू हमने सेट कर ली x इक्वल टू 5। यहाँ पे x है, उसकी वैल्यू 5 सेट कर ली। मेन मेथड में हम क्या करते हैं, न्यू मेन। मेन मेथड में हम न्यू मेन ऐसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो कॉल करने के बाद जैसे ही हम ये कॉल करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट से हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। तो उसकी वैल्यू हमने कहाँ सेट की, कंस्ट्रक्टर में। तो उससे पहले जैसे कि वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब तो उससे पहले हम तो सेट करवा रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, है ना। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर काम आता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अभी देखो कंस्ट्रक्टर का क्या रूल्स है, उसका नाम मैच होना चाहिए क्लास के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास के नाम से कोई नहीं है तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। जस्ट मिनट। हाँ भाई, तो ये थोड़े रूल्स है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से मैच होना चाहिए। रिटर्न टाइप, इट कैन नॉट हैव रिटर्न टाइप लाइक वॉइड। रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंस्ट्रक्टर में पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर होना चलेगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसा चलेगा, पर ये वॉइड इंटीजर ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दो तीन रूल्स है, वो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। देख कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लास हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। इफ यू डू नॉट क्रिएट अ क्लास कंस्ट्रक्टर योरसेल्फ, जावा क्रिएट्स वन फॉर यू। देखो अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहे, देखो ये प्रोग्राम में तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नहीं बना रहे, ये नहीं बना रहा है, तो जावा अंदर क्या करेगा, इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर बना ही देगा हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर बना ही लेगा। ठीक है। However, then you are not able to set initial values for object attribute. तो जावा हमारे लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, पर हम उसमें कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला हमने देख लिया, पैरामीटर कैसे देना है, तो अभी हमने वो एग्जांपल ही देख लिया। हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, जैसे है एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, और उसमें एक कंस्ट्रक्टर में ईयर और नेम है, तो उसको हम मॉडल ईयर और मॉडल नेम में असाइन करते हैं। मॉडल और मॉडल नेम वेरिएबल है, और जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू डालते हैं, मतलब ये क्लास के पैरामीटर में, तो ये असाइन हो जाएगा इसमें मॉडल ईयर मॉडल नेम में। ठीक है, और फिर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर। ये दो तीन रूल्स है, तो ये याद रखना कंस्ट्रक्टर में, जैसे कि क्लास के नाम से मैच होना चाहिए, रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, और ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होते अगर हम कुछ डिफाइन नहीं करते। पर अगर कंस्ट्रक्टर अगर ना बनाए तो भी जावा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा, हमारे लिए क्रिएट करेगा। ठीक है, फाइन। तो भाई ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर। अभी है रिकर्जन। अभी रिकर्जन हो गया है, समझ में आ रहा है, एवरीवन इज क्लियर विद रिकर्जन, तो हम वो स्किप करेंगे। पूछ लेता हूँ एक बार। ठीक है, रिकर्जन हम स्किप करते हैं। कहाँ गया,
रिकर्जन मतलब एक और एक ही मेथड को बार बार कॉल करना। ठीक है, अभी पासिंग और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स इन जावा, आई थिंक ये मैं फिर से रिपीट कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये यही कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिर भी हमारा हो गया है, फिर भी ये मैं ये रिपीट करवाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला। उसके बाद ये आगे चलेंगे, ठीक है एवरीवन। ओके, सो कुछ डाउट, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू से? No doubts? Okay then. So what we'll do, we'll keep our class up to here only. नेक्स्ट क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर्स हम फिर से स्टार्ट करेंगे, और 2-3 लेक्चर थोड़ा रिवीजन में ही गुजारेंगे, ठीक है, तो बाद में ही हम आगे बढ़े, ठीक है एवरीवन। हेलो सर। यस सर, किसी भी आर्गुमेंट को पास कराने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं? आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे कि कहाँ पे? मेथड को कॉल करने में। थोड़ा जोर से बोलो, बहुत लो आवाज आ रही है। किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। हाँ हाँ, तो सर क्यों ऐसा करते हैं? देखो, जैसे कि ये न्यू का मीनिंग क्या है, सबसे पहले न्यू का मीनिंग है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एनसी, तो उसके लिए एक स्पेस क्रिएट होगा, अलग से स्पेस बनेगा। जैसे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल समझ लो, या एज्यूम कर लो कि एक पूरा स्पेस अलग है, ये इसके लिए अलग स्पेस हो रहा है, इसके लिए अलग स्पेस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो एनसी डॉट सम किया, तो एनसी डॉट सम में जो भी एग्जीक्यूट होगा, तो वो इस स्पेस के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं देखो NC1 इसमें लिख रहा हूं, NC1 डॉट सम करता हूं, ये मेथड कॉल करता हूं, और उसमें मैंने 2 वैल्यू डाल दी, तो NC1 की अलग स्पेस क्रिएट रहेगी, और NC1 में उसके लिए जो भी आउटपुट आ रहा है तो उस अलग स्पेस में क्रिएट होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग स्पेस क्रिएट हो रहा है, अलग मेमोरी अलोकेट हो रहा है, तो उसके लिए हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, हर एक मेमोरी अलग अलग क्रिएट करना। देखो ये एक एग्जांपल, एक ही पुलिस स्टेशन है, तो अगर थेफ्ट होता है, चोरी का मामला है, तो पुलिस वाला अलग अलग पुलिस वाले एलोकेट करते हैं ना। फाइनेंशियल क्राइम है तो अलग अलग मेमोरी, मतलब अलग पुलिस वाले होते हैं उसके, दूसरे जो भी क्राइम है उसका अलग पुलिस वाले होते हैं। वैसे ही यहाँ पे देख लो, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी अलोकेट होते हैं, अलग मेमोरी, उसके अंदर ही उसका जो भी है स्टोर होता है। हाँ, इंटरेक्शन करना है तो इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए ये समझ लो कि हर एक न्यू कीवर्ड से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे उसके लिए अलग मेमोरी क्रिएट होती है, ठीक है। समझ में आया भाई? ठीक है, ओके, सो एवरीवन राइट डाउन योर नंबर इन चैट बॉक्स, विल कीप अप टू हियर, नेक्स्ट क्लास विल सी मोर। I think everyone has written their number. Let me stop recording.